Good morning, everyone. Welcome to Arya Being Civil Engineer classes. So thank you for the previous video जो आपने रेस्पॉन्स दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो लिटरल अर्थ प्रेशर के है. उसमें थोड़ा डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चन, कैसे डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, वो देखेंगे. तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. For an earth retaining structure shown in the figure below, construct earth pressure diagram for an active state. Find the total thrust per unit length of the wall. अब क्या है, एक ये बैकफिल है अपने, जो कि पूरे 10 मीटर का है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है. और 3 मीटर तक तो ड्राई है और उसके बाद वाटर टेबल है. तो सिमिलरली करना वैसे ही है, पर इस बार अपन ने क्या चेंजेस किए हैं, एक तो सरचार्ज ऐड कर दिया और साथ में वाटर टेबल भी ऐड कर दी. सो अपन बेसिकली स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अपन ड्राई डेंसिटी निकालेंगे अपर 3 मीटर के लिए. तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल is equals to, as we know that gamma d equal to gs gamma w upon 1 plus e. G is the specific gravity which is given as 2.65 into what is the gamma w. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए अपन 9.81 प्रिफर्ड करेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस e. व्हाट इज वैल्यू ऑफ e? 0.65. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 15.56 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. Now, what is the surcharge? Surcharge is 14 kilo Newton per meter square. Now, what is the density below? What is the density of the soil in water table? Below water table, density of soil below water table is equal to gamma saturated, we can say it G plus SE upon 1 plus E times of gamma W. This implies, what is the value of Z? 2.65. And as we know that the sand is completely saturated, so S equal to 1. And what is the value of E? 0.65 upon 1 plus 0.65 into what is the value of gamma W? It's 9.81. This implies, on solving this, it's 19.62 kilo Newton per meter cube. Now, what we have the coefficient of earth pressure. We have to find the coefficient of lateral earth pressure, that is Ka, which is equals to 1 minus sine phi upon 1 plus sine phi. So here this implies phi equal to 30 degree. We get, on putting phi equal to, we get K is equals to 1 by 3. Now at h equal to 0 means at the top here, as we know that सरचार्ज वहाँ पे कितना है, 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज लगा हुआ है. तो उस कंडीशन में अपन अगर वहाँ पे एक्टिव प्रेशर निकालेंगे तो वो PE1 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू KA
into Q. This implies what is value of K is equals to 1 by 3 and what is value of Q, that is 40. On solving this we get 4.67 kilonewton per meter square. Now at H is equals to 3 meter. So let us assume that this active pressure is PA2, which is equal to, from we have to find at this point. तो at this point what we have is the ऊपर वाले का जितना लग रहा है, ऊपर वाले पोर्शन का वो कितना लग रहा है, के ए इंटू क्यू प्लस के ए इंटू गामा डी. दिस implies as in on solving we get 14.67 जो कि प्रीवियस वन में था, प्लस यहाँ का जो K1 1 by 3 और गामा डी कितना है, गामा डी वी हैव जो अपने फाइंड आउट किया था, that is 15.76. So on solving this what we get, and into 3 because we have to multiply the height. So on solving this we get is 20.43 kilonewton per meter square. Now we have to find out at H equal to 10 meter, that is equals to 10 meter at the bottom. Now what we have found that ये तो इतना तो लगेगा ही लगेगा, ये 20.43 तो लगेगा क्योंकि वो इस पोर्शन पे लग रहा है. अब यहाँ इस पोर्शन के ऊपर साथ में केवल इस पोर्शन का भी ऐड हो जाएगा, इस पोर्शन का जो एक्टिव थ्रस्ट है वो भी ऐड हो जाएगा, और उसमें साथ में इसका जो ऐड इसका जो एक्टिव थ्रस्ट आ रहा है वो ऐड कर देंगे. तो वी हैव फाइंड एट द बॉटम. ओके, सो व्हाट इज PA3? तो वी कैन डायरेक्टली राइट और अदरवाइज वी कैन सॉल्व इट. PA3 is equals to KA into Q plus KA into gamma D plus. Now what is the difference between if you find out the active thrust below the water table, then you have to take gamma submerged, that is KA into gamma submerged, because the effective density below water table is gamma submerged. And below water table what we have to do is up to the height below the water table, जो water table के below जो height है उसको अपन water की density के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, 7 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू. अब ये क्यों ऐड किया, ये ऐड किया क्योंकि ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर है वो उसकी वजह से अपन को ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी. तो ये एक डिफरेंट स्टेप है. अगर वाटर टेबल के नीचे जाएंगे तो कुछ पोर्शन जो जहाँ पे अपन गामा समझ लेंगे वहाँ पे के का मल्टीप्लाई होगा, प्लस ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर की प्रेजेंस के अंदर, इसलिए उसको जो रिमेंडिंग हाइट है जो कि मतलब जो हाइट बिलो वाटर टेबल है उसको अपन वाटर की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 20.43 है ही है ऊपर से, प्लस 1/3 ऑफ व्हाट इज गामा सबमर्ज, दैट इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू प्लस 7 टाइम्स ऑफ 9.81. तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 111.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ
व्हाट वी हैव डन इट, अपन को क्या, अब वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द अर्थ प्रेशर डायग्राम. सो अर्थ प्रेशर डायग्राम इज let us assume it is a wall. अब इनिशियली एट h इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है 44.67, दैट इज ये कितना है 4.67. अब ये कांस्टेंट है क्योंकि सरचार्ज कांस्टेंट लग रहा है, डेप्थ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है सरचार्ज ये वाला. नाउ अप टू 3 मीटर h इक्वल्स टू 3 मीटर पे कितना आ गया 20.43, दैट इज टॉल करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये है 20.43. नाउ अब एट h इक्वल्स टू 10 मीटर, तो 10 मीटर पे कितना आ जाएगा ये कितना है, ध्यान रखें ये दोनों स्लोप सेम नहीं होंगी. नाउ दिस इज द अर्थ प्रेशर डायग्राम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल थ्रस्ट. अब टोटल थ्रस्ट के लिए क्या करेंगे, या तो किसी पॉइंट के अबाउट सो टोटल थ्रस्ट पर यूनिट लेंथ निकालनी है. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, या तो अपने पास एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है और दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका सीजी निकाल के सबका कॉमन सीजी निकाल देंगे. तो ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा. और टाइम कंज्यूमिंग के लिए अगर बात करें, टाइम कंज्यूम करना है तो अपन को या ये ट्रेपेजॉइडल ले सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर ले सकते हैं और ये ट्राइंगल ले सकते हैं. तो तीनों से ही करना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले अलग अलग के लिए निकाल देंगे P1 P2, लेट अस अज्यूम P3 P4 एंड P5. सो P1 है वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ 4.67 विच इज इक्वल्स टू 114.101 किलोमीटर पर मीटर. और इसकी जो सीजी है, अपन सीजी बॉटम से निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी 7 + 3/2 क्योंकि रेक्टेंगल है. सिमिलरली P2 की बात करें तो P2 कितना हो जाएगा 4.67 प्लस 15. अब अपन ऐसा कर रहे हैं तो P2 इसको कंप्लीट को P2 ही मान लेते हैं. 15.67 into 7 which is equals to 1043.01 किलो न्यूटन पर मीटर. और इसका जो CG है वो कहाँ लाई करेगा 7/2 यानी कि 3.5. और ये ऊपर वाला कितना है 3.5 मीटर, ये कितना है 8.5 मीटर. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. सिंपल कैलकुलेशन है जो अपन कर रहे हैं.
वही अगर P3 की बात करें तो P3 की कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 15.7 इंटू 3, इसको जो सॉल्व करेंगे तो अपन वी गेट इट 23.64 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका जो CG आएगा, CG वो आएगा 7 + 1/3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर। और इसको अपन ने P5 नाम दिया था, इसको अपन P4 कर देंगे। और P4 जो आएगा वो आएगा हाफ ऑफ 22.87 + 68.87 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 320.39 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका जो CG आएगा 7/3 यानी कि 2.33 मीटर पे। बेसिकली कर क्या रहा है, अपन ये कर रहे हैं, अपन ने इस पोर्शन मान लिया, एक ये पोर्शन मान लिया, एक ये पोर्शन अलग मान लिया और एक ये पोर्शन अलग मान लिया। तो हर एक सेक्शन की अलग अलग निकाल रहे हैं। ये 4.67 है, यहाँ पे 20 पॉइंट है तो इसके अराउंड निकाल दिया। और ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग निकाल दिया। तो ये जो वैल्यूज आ रही है अपन सब ने निकाल दी। सो टोटल थ्रस्ट ऑन द वॉल कितना हो जाएगा, P1 + P2 + P3 + P4, दिस implies 14.01 + 23.64 + 143.01 + 320.39 which is equals to 501.05 किलो न्यूटन पर मीटर। सो ही इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था, अपन को एक वॉल दी थी 10 मीटर की, 3 मीटर तक ड्राई था और 7 मीटर तक, एक 7 मीटर के बाद में वाटर टेबल आ जाती है और उसके ऊपर सरचार्ज है। तो अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें सरचार्ज भी डाल दिया और अपने वाटर टेबल भी डाल दी। तो सबसे पहले बेसिकली जो अपना कॉमन स्टेप होता है जो ड्राई डेंसिटी निकालने का होता है, और उसके बाद अपन ने सैचुरेटेड डेंसिटी निकाल दी विद वाटर टेबल के लिए। उसके बाद अपन ने कोफिशिएंट ऑफ लेटरल प्रेशर निकाला जो कि 5 पे डिपेंड कर रहा है, जो कि आया 1/3। उसके बाद अपन ने अलग अलग हाइट पे अपन ने एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाले। एट 0 हाइट मीटर पे ये होता है, 3 मीटर हाइट पे ये होता है, 10 मीटर हाइट पे ये पहले। उसके बाद अपन ने अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाया। अर्थ प्रेशर डायग्राम को अपने स्प्लिट कर लिया अलग अलग भागों में, क्योंकि अपन को एरिया निकालना था उसका। तो उसका एरिया अपन ने निकाल दिया, अलग अलग सेक्शन निकाल के, और फाइनली अपन ने ऐड कर दिया। तो अपने पास क्या आ गया, टोटल थ्रस्ट ऑन द वॉल। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ नहीं था, सिंपल सी कैलकुलेशन की है अपन लोगों ने। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल आर्या बीइंग सिविल इंजीनियर। थैंक यू।